اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 6 جنوری 2021 ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق کاتالونیا سے ہے، جو اسپین کا ایک صوبہ ہے کہ کاتالونیا میں 7 جنوری کے بعد کورونا پابندیوں کی وجہ سے بند ہونے والی دکانوں اور کاروبار کے لیے 6000 یورو کی امداد کا جنرلیتات دے کاتالونیا نے سرکاری گزٹ جاری کر دیا۔ اس ضمن میں امداد لینے والوں کو ابتدائی طور پر 3750 کی بجائے 6000 یورو وصول ہوں گے۔ کاتالونیا جنرلیتات نے پابندیوں میں توسیع کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے لیے گرانٹس کو 10 ملین یورو مختص کیے ہیں۔ اس امداد سے فائدہ اٹھانے والوں میں 400 مربع میٹر سے زائد کی دکانیں، غیر ضروری اشیاء کے تجارتی ادارے اور مراکز ہیں جو پابندیوں میں بند رہے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ آٹونومو یعنی سیلف امپلائڈ کاروباری اور کمپنیوں کو براہ راست فائنانشیل ایڈ بڑھانے کے لیے اسپین کی حکومت قانون سازی کے ذریعے ترمیم کرے گی۔ اقتصادی امور کی وزارت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ حکومت کووڈ-19 میں پیدا ہونے والی پابندیوں سے متاثرہ سیلف امپلائڈ ورکرز اور کاروباری افراد اور کمپنیوں کو براہ راست امداد فراہم کرنے کے لیے قانون میں ترمیم کرے گی۔ نئے فریم ورک میں واجب الادا ایڈوانسز، گارنٹیوں، قرضوں یا دیگر امور کو براہ راست گرانٹ میں تبدیل کرنے کے امکان شامل ہے۔ اس ضمن میں اپلیکیشن دینے کی مدت 31 دسمبر 2021 تک بڑھا دی گئی ہے۔ اسپین کی وزارت صحت کے مطابق کرونا وائرس کے 28,565 مزید پازیٹیو کیسز سامنے آ گئے اور اسپین میں متاثرین کرونا کی مجموعی تعداد 29,41,990 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 11,073 افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی ہے، جو حالیہ دنوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اسپین میں نئی 584 اموات سے ملک بھر میں کل اموات کی تعداد بھی 61,386 تک جا پہنچی ہے۔ بارسلونا میں ٹیکسی ڈرائیورز کی تنظیم اگروپاسیون نے اندازہ لگایا ہے کہ کووڈ-19 وبائی مرض کی وجہ سے ٹیکسی سیکٹر میں یومیہ 1.5 ملین یورو کا نقصان ہو رہا ہے۔ تنظیم کا موقف ہے کہ سیکٹر کے اس بحران کی وجہ وبائی مرض کرونا وائرس ہے اور دوسری جانب حکومت بھی اس سیکٹر کی کسی قسم کی مالی مدد نہیں کر رہی۔ کاتالونیا کے صدر کی تنخواہ بھی کاتالان انتخابات کے انتخابی مہم کا حصہ بن گئی ہے، جو 14 فروری کو ہو رہے ہیں۔ سوشلسٹ پارٹی کے امیدوار سلوادور اییا کا کہنا ہے کہ کاتالان صدر کی تنخواہ اسپین کے وزیر اعظم کی تنخواہ سے دگنی ہے اور میں صدر بن کر اپنی تنخواہ کو 30% تک کم کر دوں گا۔ کاتالان آزادی پسندوں کی بڑی جماعت اسکیرا ریپبلیکانا نے جواباً کہا ہے کہ ہم تنخواہیں کم کرنے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر اس کا آغاز بادشاہ فلیپے کو ملنے والے شاہی وظیفے میں کمی سے ہونا چاہیے۔ بارسلونا کے اربن گارڈ نے ایک لفٹ میں نابالغ سے جنسی زیادتی کی کوشش کرنے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ بارسلونا میں گران ویا کی ایک بلڈنگ کی لفٹ میں پیش آیا۔ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو بچی کی والدہ کو دیکھ کر ملزم نے فرار ہونے کی ناکام کوشش کی۔ بعد ازاں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کو اس جرم میں 1 سے 3 سال کی سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ بارسلونا کی گلیوں میں حالیہ دنوں میں پرتشدد واقعات کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا بارسلونا غیر محفوظ شہر بن چکا ہے۔ پیر کو ایل کارمل میٹرو سٹاپ پر ایک شخص کو چاقو گھونپ دیا گیا۔ جمعرات کو ایک اور کو چھرا مارنے کی واردات ہوئی اور اس کا مقصد ڈکیتی تھا۔ اس دوران ایک شخص پر حملہ ہوا اور زخمی شخص فوری طور پر ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ البرون میں پرتشدد حملے کی تصاویر اور ویڈیو بھی منظر عام پر آئی۔ اس واقعے میں ایک جوڑے کو لوٹا گیا تھا۔ اس کے بعد اہل علاقہ نے پولیس اور دیگر قانون ساز اداروں سے اپیل کی ہے کہ اس علاقے کو محفوظ ترین علاقہ بنانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ اسپین کے شہر پمپلونا میں میونسپل پولیس نے ایک 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے، جس نے اپنی 32 سالہ ساتھی کے سینے میں چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس کو اطلاع خاتون نے دی تھی کہ پمپلونا میں ایک عورت اور کو اس کے ساتھی نے چھری مار کر زخمی کر دیا ہے۔ میونسپل پولیس کے مطابق پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک عورت زخمی حالت میں ہے اور اس کے سینے میں اور ایک ٹانگ اور پشت پر زخم تھے۔ زخمی خاتون کو ناویرا کے ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کروا دیا گیا ہے، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ امریکہ میں ایل سلواڈور سے تعلق رکھنے والی ایک ماں اور بیٹی کو امیگریشن حکام کی حراست میں
500 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका में एक कानून है कि जिसके तहत हुक्काम गैर बालिग तारकीन वतन को 20 दिन से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। 2 फरवरी तक उन्होंने अमेरिकी हुकूमत की हिरासत में 531 दिन गुजार लिए हैं। पनाह की एक नाकाम दरख्वास्त के बाद वो अमेरिका से मुल्क बदरी से बचने की कोशिश कर रही हैं। लूसिया इस हिरासती मरकज से जा सकती थी और अमेरिका में किसी और रिश्तेदार के साथ रह सकती थी, मगर उन्होंने और उनकी वालदा ने अमेरिकी अदालतों में अपना मुकदमा लड़ने के दौरान इकट्ठे रहने का फैसला किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर जो बाइडेन ने कहा था कि वो ख़ानदान के अफराद को हिरासत में रखने के ख़िलाफ़ हैं और तारकीन वतन बच्चों और इनके वालिदैन को रिहा कर दिया जाना चाहिए। आरियाना ने बताया कि हुकूमत ने उन्हें मुल्क बदतर करने की 5 बार कोशिश की है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मुल्क में अद्वियात और खाने की बड़ी मिकदार दरामद किए जाने के पेश नज़र बरतानिया की सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद करना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। वाज़ेह रहे कि लेबर रहनुमा ने बरतानिया में दाखिल होने वाले नए कोरोना वायरस को रोकने के लिए सख्त पाबंदियों का मुतालबा किया था। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वायरस के फैलाव को कम करने के लिए हुकूमत ने पहले ही सफरी पाबंदियां सख्त कर दी हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, क्या उन्हें आज़ादाना सफ़र करने और रेस्तोरां वगैरह जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए या उन्हें ये मराहत मिलनी चाहिए? जर्मनी में बाकायदा एक अखलाकी पैनल में इस मौजू पर बहस हो रही है। जर्मनी की अखलाकियात कौंसिल के एक इजलास में इन अफराद की पाबंदियों से खुसूसी छेड़ देने की बात की गई जिनको कोविड-19 की वैक्सीन लग चुकी है। जर्मनी में गुज़िश्ता नवंबर से जुज़वी लॉकडाउन जारी है। बार्स, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स सेंटर वगैरह बंद हैं। गुज़िश्ता दिसंबर में स्कूलों और गैर ज़रूरी अशिया की दुकानों को भी बंद करने का फैसला किया गया था और तब से अवामी ज़िंदगी बहुत हद तक मफलूज होकर रह गई है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नज़ाद डॉक्टर हिना चौधरी को शोबा तिब में खिदमात सर अंजाम देने पर हीरो करार दिया गया है। अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से जारी होने वाले बयान में बताया गया है कि कार्डिक मैजिशियन यानी जादूगर के नाम से मशहूर डॉक्टर हिना चौधरी कार्डियोलॉजिस्ट, साइंसदान और मुहक्कक हैं। डॉक्टर हिना चौधरी का शुमार दुनिया की 20 बाअसर मुस्लिम खवातीन में भी होता है। अमेरिकी सफारत खाने ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में साइंसी मैदान में खिदमत अंजाम देने वाली मुस्लिम खवातीन, अमेरिकी मुसलमान खवातीन का भी शुक्रिया अदा किया। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर करने की कोशिश के दौरान बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक कोपैमा 42 साल अटानास अस्काटू गिरकर हलाक हो गए। 7 समिट ट्रैक्स नामी कंपनी ने भी उनकी हलाकत की तस्दीक कर दी है। ये गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान K2 सर करने की कोशिश में हलाक होने वाले दूसरे कोपैमा हैं। कबल अजी गुज़िश्ता माह K2 सर करने की कोशिश के दौरान एक स्पेनी कोपैमा हलाक हो गया था, जबकि जनवरी में ही रूसी अमरीकी एलेक्स गोल्ड फार्म नामी कोपैमा ब्रॉड पैक नामी चोटी सर करने की कोशिश में मारा गया था। मेरा मसला ये है कि मुझे कानूनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया है। ये कहना है 58 साला खातून जेन पोजेन का, जो फ्रांस के शहर लियोन में रहती हैं। उन्हें कानूनी तौर पर मुर्दा करार दिए जाने के नतीजे में उनका शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अब काबिल इस्तेमाल और दुरुस्त नहीं रहा है, जबकि उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी मनसूख कर दिया गया है और इनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी ख़त्म हो गई है। मैं मर चुकी हूँ, मैं अदालतों के लिए मर चुकी हूँ, हुकूमती अदारों के लिए मर चुकी हूँ, मैं सब के लिए मर चुकी हूँ। मकामी टीवी चैनल से बात करते हुए उनका कहना था कि मुझे किसी जहन्नम में होने का एहसास होता है। उनका मज़ीद कहना था कि अब मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर मैं गिरफ़्तार हो गई या मेरे साथ कोई मसला हो गया तो मेरा क्या बनेगा। अगर मुझे ग्रोसरी लेने के लिए जाना पड़े तो मैं अपने सर को झुका के दुकानें बंद होने के वक्त तक जाती हूँ या बहुत जल्दी से चीज़ें खरीद कर ले आती हूँ। जेन का कहना है कि मैं ज़िंदा होने के अमल में हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सराफ फयाजुल्लाह को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को लेक्चरर की नशिस्त के लिए दोबारा दरख्वास्त जमा कराने की हदायत की है। पंजाब पब्लिक कमीशन के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लेक्चरर के लिए सिर्फ मर्द और ख़वातीन दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन कमीशन इजाज़त दे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। दौरान समाज सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन कमीशन ने अदालत को बताया कि उन्हें ख्वाजा सरा की दरख्वास्त मंजूर करने पर कोई एतराज़ नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फरीक़ों का मौक़िफ़ सुनने के बाद ख्वाजा सरा फयाजुल्लाह को पंजाब सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी है।
जनवरी के महीने के दौरान अमेरिका में रोजगार के सिर्फ 49,000 नए मौके पैदा हुए, जिससे जाहिर होता है कि अमेरिकी मईशत कोरोना वायरस के आगाज के तकरीबन 1 साल बाद इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकी है। दिसंबर के महीने में अमेरिका में 2,27,000 अफराद को अपने रोजगार से महरूम होना पड़ा था, जो गुज़िश्ता साल अप्रैल के बाद एक बड़ा नुकसान था। लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी में मुल्क में बेरोजगारी की सतह 6.7% से गिरकर 6.3% हो गई है, और इस कमी की वजह बेरोजगारी अलाउंस लेने वाले कई अफराद को मुलाजमतें मिल गई हैं। हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते 7,79,000 अमरीकियों ने बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरखास्तें दी थी, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 33,000 कम है। कई माह से बेरोजगारी अलाउंस की दरखास्तें की तादाद 7 लाख फी हफ्ता रही है, और चंद हफ्तों के दौरान ये तादाद 8 लाख से 9 लाख तक भी पहुंच चुकी है। सऊदी अरब के तमाम शहरों के हज़ारों रेस्टोरेंट और कहवा खानों में टेबल सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा दी जाएगी। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम शहरों के हज़ारों रेस्टोरेंट्स और कहवा खानों में टेबल सर्विस पर पाबंदी जुमेरात 10 बजे से नाफिज कर दी गई है। सिनेमा घर और इंडोर तफरीही मराकज़, गेम्स के मकामात, शॉपिंग सेंटर और स्पोर्ट्स सेंटर 10 रोज़ तक बंद रहेंगे। राजा शोएब सती एक हमदर्द और इंसान दोस्त इंसान थे, और उनकी बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वो कम्युनिटी की खिदमत को बेलौस होकर सर अंजाम देते थे। इन ख्यालात का इजहार अदारा हमवतन के ज़ेर तमाम उनकी याद में मुनक्किदा ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने किया। ये तकरीब कौंसलेट बार्सिलोना में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने की। इस मौका पर पहले कौंसल जनरल बार्सिलोना और साबिक एम्बेसडर सैयद अयाज हुसैन शाह भी मौजूद थे। मुकर्ररीन में मोहम्मद इकबाल चौधरी, राजा मुख्तार सोनी, राजा शफीक कयानी, जावेद मुग़ल, चौधरी अब्दुल गफ्फार मरहाना, अयाज मठाना, मिर्ज़ा नदीम बेग, राजा जफ़र सती, अयाज हुसैन शाह और कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी शामिल थे। मुकर्ररीन ने कहा कि राजा शोएब सती ने तदफीन और दीगर मामलात के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब में कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, मारूफ नाथ खान, कदीर खान ने पढ़ा और आखिर में दुआ भी करवाई। तकरीब में तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की थी। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट देना मत भूलिए। आपका कमेंट जो है वो हमारी रहनुमाई और हमारी हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे फेसबुक पेज को भी जो है लाइक करें, BBC अपडेट TV के नाम से है, और उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि हम वहाँ पर मज़ीद जो है वो एक्टिविटीज़ कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे, और हमारा ख़ात्मा जो है वो ईमान के ऊपर करे, और रोज़े महशर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमाए। और उन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि जो इस वक्त इस वबाई मर्ज़ की वजह से बीमार है, कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए, और इस वबा से जो है पूरी इंसानियत की जान छुड़ाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।